ناول ہادہ جس کی رائٹر ہے نورالعین مصطفیٰ، یہ اس کی 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے محنت کا انعام آپ چینل سبسکرائب کر کے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 3، قبولیت۔ لب جماتے وہ جمائی کو روکتے بمشکل سیدھی بیٹھی تھی۔ پورے کلاس روم میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس خاموشی کی وجہ روسٹرم کے پیچھے کھڑی تھی، مطلب کھڑا تھا پروفیسر ہائیڈ جنید، یعنی کھڑوس۔ صرف کھڑوس کیوں، ڈریکولا بھی، اور وہ بھی آگ اگلتا ہوا۔ حبور شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں گھمائیں اور پھر اپنے سامنے موجود خالی صفحے کو دیکھا، جس پر 2 فقرات پر مشتمل سوال لکھا گیا تھا، جبکہ باقی کا صفحہ بالکل حبور کے دماغ کی طرح خالی تھا۔ اس کھڑوس نے بھی آج ہی سرپرائز کوئز لینا تھا۔ اللہ، کوئی تو راستہ دکھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر پھر اپنی سوچ پر سر جھٹک دیا۔ حبور شاہ، تم کسی سے پوچھتی اچھی لگو گی بھلا۔ حبور شاہ خالی صفحہ اٹھا کر دے دے گی، مگر کسی سے ہرگز نہیں پوچھے گی۔ وہ گردن کڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اب اس کی نظر ہائیڈ پر جمی تھی، جو کسی لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج براؤن شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر اس نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش معمولی سے تھے، مگر کوئی بھی انسان اسے ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ ایسا حبور کو لگتا تھا۔ اسے ہائیڈ کی نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سی، اداس سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسکراتی کیوں نہیں تھی؟ آخر کون سا روگ تھا جس نے ان نیلی آنکھوں کو گھیر رکھا تھا؟ حبور نے اپنی کوہنی ڈیسک پر رکھی اور اپنے ہاتھ پر چہرہ جما دیا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر ہائیڈ کو تک رہی تھی، بنا پلک جھپکائے، ٹکٹکی باندھے، یوں جیسے اسے دیکھنے کے علاوہ حبور شاہ کو کوئی کام نہ تھا۔ وہ اب عادتاً اپنے ہاتھ ہلاتا کسی کو کچھ سمجھا رہا تھا، پھر وہ وقت ختم ہونے کا انتظار کرتا روسٹرم پر اپنی انگلیاں بجانے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں کی حدود بھول بیٹھی تھی، فراموش کر گئی تھی کہ ہر چیز کا آغاز انہی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان آنکھوں سے ہی دل میں داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان آنکھوں کو بند کرنا سیکھ لے تو وہ بہت سی تباہ کاریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہائیڈ کی نظریں پورے کلاس روم میں دوڑ رہی تھی۔ یکدم اس کی نظر آخری کرسی پر پڑی، جہاں بیٹھی لڑکی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ دوسری جانب حبور ہائیڈ کو اپنی جانب متوجہ پا کر بوکھلا سی گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی چوری پکڑ لی گئی۔ اس نے گڑبڑا کر اپنی نظر سامنے موجود کاغذ کی جانب مرکوز کی۔ ہائیڈ تعصب سے سر ہلاتا ہوا کسی اور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حبور نے ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو اب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد ایک لڑکی ہائیڈ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ حبور نے ابرو سکوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ شیزا تھی، جو پہلے دن اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اب ہائیڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی، جبکہ ہائیڈ کو اس سے نارمل بات کرتے دیکھ کر اب وہ سلگ اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ رہا تھا، بس اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے۔ اس کے ناک اور گال غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکے تھے۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دونوں اتنے پاس کھڑے تھے۔ دوسری جانب دیوار کے ساتھ کھڑا ہائیڈ انتہائی انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر بہت سی نظریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہی آخری کرسی والی لڑکی سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ اس دفعہ حبور نے چہرہ موڑنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ ہائیڈ کو اب اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ مس، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑی ہوں گی۔ شیزا، جو جان بوجھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کی بات سن کر اس کا چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑ گیا۔ وہ یس سر کہتی پیچھے ہو گئی۔ ہائیڈ نے پھر سے آخری کرسی کی جانب دیکھا، جہاں بیٹھی لڑکی کے چہرے پر اب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ لیکچر کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ وہ کوئز پر لعنت بھیجتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اس لڑکی کی باغی نظریں پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس وقت کوئی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ حاتم بیٹا، ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی جانب دیکھا، جس پر آج ایک الوہی سی چمک تھی، ایسی چمک جو انہیں کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت حاتم کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ایک چھوٹا مگر صاف کمرہ تھا، جسے دیکھ کر وہاں رہنے والے کا ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو تمہیں کمرے کے عین وسط میں ایک پلنگ نما بیڈ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی لکڑی اور ڈیزائن پرانے زمانے کا لگتا تھا، جیسے کسی میوزیم سے خریدا گیا ہو۔ پلنگ کے سامنے عقبی دیوار پر اس کے اپنے ہاتھ کی بنائی سورج غروب ہونے کی پینٹنگ تھی۔
मगर वो पेंटिंग दरअसल एक इल्यूजन था, आंखों का धोखा। वो पेंटिंग बैक वक्त सूरज गुरूब होने को भी दिखा रही थी और सूरज तुलू होने को भी। पलंग के दाएं जाने मौजूद दीवार पर निगाह डालो तो तुम्हें सुनहरी स्याही से लिखी गई कैलीग्राफी की पेंटिंग नज़र आएगी, जिस पर लिखे हरफात दूर से देखने पर चमकते हुए मालूम होते थे। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुआ खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। यहीं से साबित है कि इख्तियारात अल्लाह बरहक के लिए है, वह सवाब देने और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। सूरह कहफ आयत नंबर 44। पेंटिंग के थोड़ा सा आगे एक लकड़ी की पुरानी तर्ज पर बनी अलमारी थी, जिसमें से वो कपड़े निकालता सूफिया बेगम की बात सुन रहा था। अगर तुम पलंग के बाएं जानिब देखो तो तुम्हें एक स्टडी टेबल नज़र आएगी, जिस पर मौजूद 3D लैम्प जगमगा रहा था। स्टडी टेबल से थोड़ा आगे किताबों की अलमारी बनी हुई थी, जिसमें बहुत सी किताबें मौजूद थी। उस अलमारी को सब्ज़ बेल से सजाया गया था। अब कमरे को छोड़ते हुए हातिम की जानिब मतवज्जा होते हैं, जो अब पलंग पर बैठी सूफिया बेगम के पास बैठ चुका था। माँ, मैं अपना फ़ैसला नहीं बदल सकता। वो खुश था, बेइंतहा बेतहाशा। आज का दिन उसके हक़ में बहुत अच्छा साबित हो रहा था। मैं अपने शौहर को खोने के बाद तुम्हें नहीं खोना चाहती। वो रेहान सी हो गई थी। अभी उसकी पोस्टिंग मेल आई थी। उसकी पोस्टिंग वहाँ हो चुकी थी जहाँ वो चाहता था, उसके अपने लोगों के दरमियान। माँ, मैंने इस दिन का न जाने कब से इंतज़ार किया है। प्लीज़ मुझे मत रोकें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। वो अब की बार संजीदा लहजे में बोला था। दोपहर में उसका निकाह था और अभी सुबह का वक्त था। आज सूरज के निकलने की उम्मीद थी। तुम्हारे बाबा भी यही कहा करते थे। उनका लहजा टूट गया था। आज के दिन का तो उन्होंने भी बहुत इंतज़ार किया था, तुम्हारी शादी का। हातिम ने उनकी बात पर अपना सर झुका दिया। उसकी आंखों में चमकते आंसू सूफिया बेगम भी देख चुकी थी। वो कैसे अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर दुश्मनों के गढ़ में भेज देती। माँ, क्या आप भूल गई हैं कि आपने मुझे किस शर्त पर जिस निकाह के लिए राज़ी किया था? एकदम हातिम ने सर उठाया। सूफिया बेगम लंबा सांस भरकर रह गई। उनका बेटा फर्मा बरदार होने के साथ साथ ज़िद्दी भी था। उसे मालूम था कि कौन सी बात कब और कैसे मनवानी है। आपने खुद कहा था कि मैं ये निकाह कर लूँ तो आप मुझे जाने देंगी। मैं निकाह कर रहा हूँ, फिर ये इनकार क्यों? वो निकाह अब सूफिया बेगम को घाटे का सौदा लग रहा था, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, चले जाना। अभी कुछ देर तक हादी आएगा। उसके साथ सैलून जाना, बाल वगैरह बनवा लेना। उन्होंने बादल नखासा कहा और उठ खड़ी हुई। पीछे हातिम कमरे में तन्हा रह गया। वो दरवाज़ा बंद किए अंदर बैठी थी। वो इस वक्त रज़िया बेगम से कुछ देर आराम करने के लिए इजाज़त मांग कर आई थी। वो सुबह से कामों में उलझी हुई थी, कभी मेहमानों के दरमियान तो कभी निकाह की तैयारियों में। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, जिनमें ज़्यादा मोहल्ले के लोग थे। रिश्तेदार तो चंद एक ही थे। नईम साहब के कुछ जानने वाले भी आए हुए थे। उसके आगे एक डायरी खुली पड़ी थी, जिसके एक खाली सफ़े पर नीला कलम मौजूद था। उसने लंबा सांस भर के कलम उठाया और उस डायरी के बोसीदा सफ़े के ऊपर घसीटने लगी। मैंने जब उसे पहली दफ़ा देखा तो मुझे लगा कि उसे मेरे लिए ही बनाया गया है। लफ्ज़ खुद ब खुद लिखते चले जा रहे थे। अंदर का धुआं उन लफ्ज़ों की सूरत बाहर निकलता जा रहा था। वो एक दफ़ा अपनी हालत को कबूल करना चाहती थी, वरना उस निकाह को कैसे मान लेती। जब उसने अपनी नज़रें झुकाईं तो मुझे लगा कि इस कदर हयादार मर्द मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो हंस पड़ी। उसे बेख्तियार हातिम का नज़रें झुकाना याद आया था। वो मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए था। ना महरमों को इतना अच्छा लगने का हक़ नहीं होना चाहिए। मैं ख़ुद को रोकना चाहती थी, मगर नहीं रोक पाई। मेरा दिल खुद ब खुद उसकी जानिब माइल होता चला गया। ये वो राज थे जो उसने कभी खुद से भी नहीं कहे थे, मगर आज वो मजबूर थी। एक खामोश सा दर्द उसके दिल में उठ रहा था। और देखो, आज उसका और हमना का निकाह है, और मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि मेरी बहन का निकाह है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। उसकी आंखों में नमी छा चुकी थी। वो आंसू जिन पर न जाने वो कब से बाढ़ लगाए बैठी थी, बहने को तैयार थे। मैं खुश नहीं हूँ, मगर खुश तो हमना भी नहीं है। हम दोनों बहनें मजबूर हैं। आंसू एक एक करके सफ़े पर गिरते जा रहे थे, जिन्हें वो साफ़ नहीं कर रही थी। मैंने तो उसे सोचा भी नहीं था कि कहीं उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पुख्ता ना हो जाए, मगर वो तो आज एक तनावर दरख्त बनकर मेरे सामने खड़ी है और मुझ पर हंस रही है कि देखो हाफा, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, कैसे बचोगी मुझसे। उसका हाथ कपकपा रहा था।
मगर वो लिखती जा रही थी, उल्टे सीधे अल्फाज जिसके दिल की हालत को अया कर रहे थे। दर्द हद से सबा हो रहा था, धड़कन लम्हा पर लम्हा तेज़ होती जा रही थी, सांस फूल रहा था। मैंने तो उसे इतनी खामोशी से चाहा था कि ख़ुद को भी भनक नहीं लगने दी थी। क्या मेरा उस इंसान को चाहना गुनाह था? उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इन्हेलर उठाते हुए उसने जल्दी से चंद मसनूई सांसें इन्हेल की और खड़ी हो गई। मुझे हमना के पास जाना चाहिए। डायरी बंद करके स्टडी टेबल के दराज में रखी और एक नज़र आईने पर डाली। सुनहरी दुपट्टा हिजाब की सूरत चेहरे के गिर्द मौजूद था। आंखें हल्की सी सूजी हुई थी। वह अपने अक्स से नज़रें चुरा कर रह गई। भूरी शॉल उसके कंधों पर मौजूद थी। गुलाबी शरारा उसकी सांवली रंगत पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। शरारे को संभालती वो बाहर की जानिब बढ़ गई। कमरे में सुनहरी चूड़ियों की झनकार गूंजी थी। अभी वो हमना के कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि रास्ते में उसे उसकी खाला ने रोक लिया। वो उसका हाथ पकड़ती बैठ चुकी थी। वहाँ मोहल्ले की चंद औरतें और चंद रिश्तेदार ख्वातीन मौजूद थी। उसकी बदकिस्मती के उसे बरामदे से गुजरकर हमना के कमरे में जाना पड़ रहा था। यास्मीन बेगम अब उसका तारीफ़ अपने होने वाली बहू के तौर पर करवा रही थी, जबकि वो सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वह अपनी आंखों की मामूली सी सोजिश भी नहीं दिखाना चाहती थी। प्यारी है ना? वो अपने सामने बैठी एक औरत से पूछ रही थी, जो एक्सरे करती निगाहों से हाफा को देख रही थी। हाफा ने उनकी नज़रों से बेचैन होते हुए अपना पहलू बदला। हाँ, प्यारी तो है, मगर रंग थोड़ा सा सांवला है। हाफा ने सर उठाकर उन खातून को देखा। लाल रंग के लिबास में मलबूस 40-45 साल औरत, चेहरा मेकअप से भरा हुआ। फिर उसने अपने साथ बैठी यास्मीन बेगम को देखा, जो उनके बात पर खाइफ होती मुस्कुराई थी। रंग का क्या है, वो तो क्रीमें लगाकर भी सफ़ेद हो जाता है। तुम्हारी बहू भी तो पहले काली ही थी। मुझे क्रीमों का नाम बता रही थी जिससे उसका रंग बेहतर हुआ। हाफा उनकी बात पर लंबा सांस भर कर रह गई। एक तो उन ख़वातीन की खूबसूरत बहुएं लाने की जंग ख़त्म नहीं होती। जैसे बहू न कोई गुड़िया हो गई कि जिसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हुई उसे इनाम मिलेगा। कोई उन्हें बताए, अल्लाह के बनाए गए इंसानों में नुक्स नहीं निकालते। अल्लाह की कारीगरी कामिल है। तुम उसकी कारीगरी को बुरा कहकर उसकी कामिलियत पर सवाल उठाते हो। हाफा ने अब उन खातून के चेहरे की जानिब देखा, जो अब उसी तरह खफत के मारे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ देर पहले यास्मीन बेगम मुस्कुराई थी। थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती, अब की बारे खातून बोली थी। हाफा ने लंबा सांस भरा। उसे अपने चेहरे पर फ़िल्टर लगाना पसंद नहीं था, और ये हिजाब ओढ़ने की क्या ज़रूरत थी? बहन का निकाह है, बाल खोल देती। हाफा उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी, मगर सिर्फ सुन ही रही थी। उन बातों पर बुरा मनाना वो कब का छोड़ चुकी थी। न जाने क्यों लोग अपने मफरूज़े दूसरों की ज़िंदगियों पर लागू करना चाहते हैं। वो शायद अपनी ज़िंदगी से इतना उकताए हुए होते हैं कि अब उस पर बात भी नहीं करना चाहते। वो अपने लफ्ज़ों से दूसरों की ज़िंदगियों को काबू करना चाहते हैं। कितनी अजीब बात है। माज़रत, मुझे हमना के पास जाना है। उनकी बातों का जवाब दिए बगैर वो खड़ी हो गई। अगर आज वो उन बातों का जवाब दे देती तो लोग उसे मनहूस, कर्ज़ और कातिल के साथ साथ बदतमीज़ और बदलिहाज भी कहते। उसे इन बातों से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहती थी। कितनी मगरूर थी ना, किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। जैसे कहीं की शहज़ादी हो। यह आखिरी जुमला था जो उसके कानों में पड़ा था। फिर वो सर झटकते हुए हमना के कमरे में दाखिल हो गई। ये सब बातें वो उसके सामने कर रही थी। न जाने उसके पीठ पीछे क्या कुछ कहती। अब वो सबके मुंह तो बंद नहीं करवा सकती थी ना। निकाह का वक्त हो चुका था। हमना को मोहल्ले की एक लड़की ने तैयार किया था। सफ़ेद रंग का लंबा फ़्रॉक पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। फ़्रॉक के ऊपर सुनहरी बेल बूटे बने हुए थे। सुर्ख दुपट्टा उसके सर पर टिका था। ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठे हुए उसने अपना अक्स आईने में देखा। वो खूबसूरत थी और आज निकाह के जोड़े में वो दिलकश लग रही थी। मगर एक चीज़ ऐसी थी जो आज उसके चेहरे से गायब थी, और वो थी उसके चेहरे की चमक। अपने आप को किसी और की दुल्हन बने देखकर उसका दिल रो रहा था। आंखों के आगे बार बार धुंधलाहट छा रही थी। वो बहुत ज़ब्त किए वहाँ बैठी थी। उस कमरे में उस वक्त हाफा, रज़िया बेगम, सूफिया बेगम और यास्मीन बेगम मौजूद थी। हादी और नईम साहब अभी कुछ देर तक निकाह खां के साथ पहुँचने वाले थे। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सूफिया बेगम ने सुर्ख दुपट्टे से हमना के चेहरे पर घूंघट करा दिया। हमना ने बेसाख्ता ही अपने फ़्रॉक को मिट्टियों में भींच लिया। कुछ फासले पर मौजूद हाफा ने दुपट्टे के पल्लू को अपने चेहरे पर फैला दिया। सूफिया बेगम के दरवाज़ा खुलने पर नईम साहब के हमरा, निकाह खां, हादी और मोहल्ले के चंद बड़े अफराद अंदर दाखिल हुए। हमना और हाफा दोनों सर झुकाए बैठी थी।
चंद हमों बाद हाफा ने डिबडिबाती आंखों से सर झुकाए बैठी हमना को देखा और फिर निकाह खां की जानिब देखा जो हमना से उसकी रजामंदी के बारे में पूछ रहे थे। उसका दिल कांप रहा था। हमना की हालत भी कुछ यूं ही थी। उसका दिल चाह रहा था वह अपनी बजाय हाफा का निकाह पढ़वा दे। उसने सुर्ख दुपट्टे के पार से हाफा की जानिब देखा जो सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। वो उसी लम्हे वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर फिर उसे अपने सर पर नईम साहब का हाथ महसूस हुआ। वो अपने सारे आंसुओं को पी गई। हाफा का दिल धक धक कर रहा था। वह हमना के कुछ बोलने के मुंतज़िर थी। दिल में ख्वाहिश सी उठी थी कि काश वो इनकार कर दे और नईम साहब उसका निकाह हातिम के साथ करवा दे। काश, मगर उसका काश ही रह गया। उसकी समात ने हमना की कबूलियत सुनी थी। तने हुए कंधे ढलक गए। पलकों की बार पर अटका हुआ आंसू आज़ाद हो गया। उसने निकाह खां को देखा जो अब दूसरी बार हमना से उसकी रजामंदी पूछ रहे थे। फिर तीसरी बार हमना ने तीनों दफ़ा ही कबूलियत का अंदिया दिया था। उसने बेसाख्ता ही आंखें बंद करके सोफ़े के पुश से टेक लगाई और अपने आंसुओं को बहने दिया। अब हादी हमना के सर पर हाथ रख रहा था। फिर सूफिया बेगम और रज़िया बेगम आपस में गले मिल रही थी। फिर वो सब हमना से मिल रहे थे। निकाह खां और बाकी अफराद बाहर जा चुके थे। वाइस्तगी से उठी और हमना के पास जाने लगी, मगर रज़िया बेगम ने उसकी कलाई थाम ली। उनकी आंखों में तंबीह थी कि वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती। उसने नम आंखों से हमना को देखा जो खाली खाली नज़रों से उसी की जानिब देख रही थी। हाफा की आंखों में एक इल्तिजा थी, एक खामोश इल्तिजा कि वो उससे मिलना चाहती है। हमना ने लंबा सांस भरा और फिर रज़िया बेगम को देखा जो गुस्से से हाफा को तक रही थी। दादो, मुझे हाफा से मिलना है। उसकी बात पर रज़िया बेगम के साथ साथ हाफा ने भी बेयकीनी से उसे देखा था। हमना अपनी बात कहकर रुख मोड़ चुकी थी। रज़िया बेगम ने एक झटके से हाफा की कलाई छोड़ी तो वो हमना की जानिब बढ़ गई। मुझे हाफा से अकेले में बात करनी है। सूफिया बेगम और यास्मीन बेगम तो खामोशी से वहाँ से चली गई, जबकि रज़िया बेगम चंद लम्हे हाफा को देखती रहीं और फिर बाहर निकल गई। कुंडी लगा दो। हाफा कुंडी लगाकर वापस बेड की जानिब आ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हमना उससे क्या बात करना चाह रही थी। बैठ जाओ, उसने नर्म लहजे में कहते हुए अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो फ़ौरन बैठ गई। हाफा हमना को देखती रही। उसकी बहन वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम मुझसे 2 साल बड़ी थी, मम्मा की लाडली, थोड़ी सी पागल, वो सर झुकाए कह रही थी। शायद अपने अंदर का गुबार निकालना चाहती थी। हाफा के साथ बुरा सलूक करके उसे कुछ नहीं मिल रहा था। सबसे ज़हीन कौन? हाफा। हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन कौन लेती? हाफा। मैं जितनी भी कोशिश कर लेती हाफा जितनी ज़हीन नहीं बन पाती, क्योंकि मैं तो हमना थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। हाफा दम साधे उसकी बातें सुन रही थी। जब तुम रात को डर जाती थी तो मुझे खुशी महसूस होती थी। जब तुम चिल्लाती थी तो मुझे एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। बच्चे तो मासूम होते हैं ना। फिर मेरे दिल में इतना हसद कहाँ से आया हाफा? उसके सवाल का जवाब हाफा के पास नहीं था। यही हसद तो होता है जो बहन भाइयों में फूट डाल देता है। मुझे तुम्हें रश्क की निगाह से देखना चाहिए था, मगर मैं तुम्हें जिस निगाह से देखती थी वो हसद की निगाह थी। हाफा खामोश बैठी थी। हसद और रश्क में फ़र्क होता है। रश्क का मतलब होता है जो किसी के पास है उसे अपने पास देखने की भी तमन्ना करना, जबकि हसद का मतलब है किसी से कुछ छीन कर उसे अपना बना लेना। फिर जब मम्मा उस दिन छत से गिर गई तो मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो तुम्हारी वजह से गिरी थी, और फिर उन दोनों ने ज़ब्त के मारे अपनी आंखें बंद की। वो मर गईं। उस दिन बारिश में वो तुम्हारे पीछे ऊपर गई थी, फिर उनका पैर फिसला था और वो गिर गईं। मैंने सबको कहा कि उनके मरने की वजह तुम हो। ना ही तुम ऊपर जाती, ना ही वो गिरती और ना ही वो मरती। आज न जाने कौन से हिसाब किताब खुल रहे थे। फिर उसके बाद सब तुम्हें कातिल भी कहने लगे, मगर एक इंसान था जो हमेशा तुम्हारी सुनता था, और वो था हादी, अब्दुल हादी। उसने एक हाथ से अपने आंसू साफ़ किए। मेरी तुमसे नफ़रत की एक वजह हादी भी था। मैं भी तो उसकी बहन थी, मगर वो कभी भी मेरी बात नहीं मानता था, मुझे गुस्सा दिलाता था। बाबा पता नहीं क्यों तुमसे नफ़रत करते आ रहे हैं। वो एक लम्हे को रुकी और हाफा को देखा जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। न जाने वो हाफा के साथ कितना गलत कर चुकी थी। वो तो पहले ही ज़ख्मी थी और उसने हाफा के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। कितनी बुरी बहन थी ना वो। और फिर एक दिन तुम्हारे लिए मेरी नफ़रत का ग्राफ और ऊपर हो गया, जिस दिन खाला ने हदीर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था। हाफा को आज भी वो दिन याद था। उस दिन हमना ने पूरा घर सर पर उठा रखा था, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, और नईम साहब ने नादिया बेगम की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया।
लोग भी जीते जी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते और मरने के बाद ख्वाहिशों का एहतराम करते हैं। अजीब दुनियादारी है। भला ऐसी संगदिली काबिल कबूल है? मैं तुम्हें जितनी भी बातें सुना देती तुम खामोशी से सुन लेती थी। दादों ने कभी मुझे रोका ही नहीं, बल्कि मेरी हौसला अफजाई की। पता नहीं उन्हें तुमसे क्या मसला है। शायद वो पोता चाहती थी, मगर तुम पैदा हो गई। हाफा ने आहिस्तगी से अपनी टांगें बेड पर चढ़ा ली। फिर उसने उन्हें सीने से लगाकर अपने बाजू उनके गिर्द लपेटे। उसे रोना आ रहा था। हमना खामोशी से गर्दन मोड़े उसे देखे गई। उसे वो 13 साला हाफा लग रही थी जो सबसे डरकर अपने कमरे में छिप जाया करती थी। मगर फिर मैं इस दुनिया में आई। दादों को मुझसे बहुत मोहब्बत है, शायद इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ, वरना उनका खून तो तुम भी हो। वो हंसी थी, तासिफ से, तकलीफ़ से। किस मोहब्बत का पैमाना खूबसूरती होता है। कुछ लोग तो खून के रिश्ते से बंधे ना होने के बावजूद एक दूसरे के दिलों के इतने करीब हुआ करते हैं, और यहाँ खून का रिश्ता होकर भी दिल में हसद और नफ़रतें पाली जाती हैं। ये कैसे सफ़ेद खून लोग हैं हम। और फिर दुनिया को इल्ज़ाम देते हैं कि दुनिया ख़राब है। दुनिया किस से है? हमसे। तो हम हुए ना सबके कसूरवार। ये बात मान लो, वरना खसारे में रहोगे। पता है, मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत थी। जानती हो क्यों? उसने अपने आंसू साफ करते हुए हाफा से पूछा। वो अब सर उठाकर सुर्ख आंखों से हमना की जानिब देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमना के दिल में उसके लिए हसद तक निकल गया। क्या दिल इतनी जल्दी साफ़ हो जाया करते हैं? हाँ, अगर नीयतें नेक हों तो दिलों से गुब्बार छटते देर नहीं लगा करती। क्योंकि मेरे साथ वो सलूक किया गया है जो तुम्हारे साथ किया जाता था। वो अब सर झुकाए बोल रही थी, शायद अपनी सिसकियां रोक रही थी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गई। वॉल क्लॉक की सुइयां घूमती जा रही थी। लम्हे सरकते जा रहे थे, मगर खामोशी बरकरार थी। जब कोई आपके साथ ऐसा करता है जैसा आप किसी दूसरे के साथ करते हैं, तब उस इंसान की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है। वो अटक अटक कर बोल रही थी। उन दोनों को कोई ख़बर नहीं थी कि लकड़ी के दरवाजे के उस पार क्या हो रहा था। वो तो उस छोटे से कमरे में अपने राज आया करने में मसरूफ़ थी। जब तक मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था, तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे कहे गए जुमले तुम्हें कितना हर्ट करते हैं। मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। उन दोनों ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिम देखा, फिर डिपडिपाती आंखों से एक दूसरे को। शायद उनकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था, जैसे किसी कैदी की मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाता है। पर उन दोनों में से कैदी कौन था, हमना या फिर हाफा? हमें 10 मिनट दें, हमना चिल्लाई, उस बात से बेपरवाह कि वो दुल्हन थी। उसे हाफा से अपनी बात मुकम्मल करनी थी। वो अपनी बात को यूं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। दस्तक देने वाला शायद जा चुका था। आज वो अपनी अना दबाकर हाफा से ये सब कुछ कह रही थी। हाँ, वो कल तो हाफा को मनूस कह रही थी। रात उस पर भी भारी गुजरी थी। बार बार हाफा की शिकवा कुना नज़रें उसके सामने आ रही थी। उन्होंने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो तकलीफ़ तुम 2 दिन नहीं सह सकी, हाफा तो इतने सालों से सहती आ रही है। क्या वो किसी चीज़ की कसूरवार थी? वो तो खुद बच्ची थी। वो क्या किसी का नुकसान करती? जब से मैंने हातिम से निकाह के लिए इनकार किया था, तब से दादू का रवैया मुझसे बहुत अजीब सा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा। हाफा दम साधे उसकी बातें सुन रही थी। आज अगर उसने कुछ खोया था तो कम अज़ कम उसे उस खसारे की इतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि बदले में उसे जो मिला था वो अनमोल थी। बहन का प्यार वाकई अनमोल होता है। जब तक मैं ये निकाह नहीं कर लेती, तब तक वो मुझसे ठीक से बात नहीं करेंगी। मेरी तो माँ भी वही थी और बहन भी। उनसे कट कर रहते हुए यूं लगा जैसे मैं सारी दुनिया से कट के रह गई हूँ। उसकी आंखों के आगे एक दफ़ा फिर से धुंधलाहट छा गई। फिर मुझे तुम्हारी तकलीफ़ समझ आई। आई एम सॉरी हाफा, आई एम सो सॉरी। दोनों की नज़रें मिली और फिर वो एक दूसरे के गले से लग गईं। आंखों से निकलते आंसू दिल का सारा गुबार अपने साथ बहा ले गए। वो दोनों ना जाने कितने वक्तों के बाद एक दूसरे के गले लगी थी। हमना को अपने इर्द गिर्द हाफा का नरम गरम सा हसार महसूस हो रहा था। उसी लम्हे फिर से दस्तक की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दोनों मुस्कुराते हुए पीछे हटी। हमना की नज़रों में झिझक सी थी। हाफा ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा साफ किया। वो उठ खड़ी हुई, इसे बाहर बुलाया जा रहा था। तुम यहीं बैठो, मैं दादों की बात सुनकर आती हूँ। वह अपना दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे हमना के दिल का बोझ काफ़ी हल्का हो चुका था।
सफ़ेद शलवार कमीज़ पर भूरी वास्कोट पहने वो दुआ मांग रहा था। हिजाब व कबूल के सारे मराहिल मुकम्मल हो चुके थे और वो हमना को पूरी रजामंदी के साथ ज़ौजियत में ले चुका था। दुआ मांगने के बाद अब सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मुबारक हो हातिम भाई। हादी आगे बढ़कर हातिम के सीने से लग गया। संजीदा से हातिम के लब मुस्कुरा दिया। हातिम ने हादी का कंधा थपका तो वो पीछे हटा। अब नईम साहब हातिम की जानिब बढ़े। उसे देखते हुए उनकी नज़रों में सताइश दर आई थी। रुआब रखने वाला संजीदा दराज कद आदमी उनकी बेटी का मुकद्दर था। वो एक जोश के साथ हातिम से मिले। मुबारक हो बच्चे। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब वो आहिस्तगी से पीछे हटा। मुझे हमना से अकेले में मिलना है। मैं उसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। वो उनके चेहरे की जानिब देखता मध्यम आवाज़ में बोला। एक लम्हे के लिए वो खामोश रह गए। फिर हातिम ने उनका सर इस बात में हिलता देखा। मेरे साथ चलो। वो उसे लिए बाहर की जानिब बढ़े। रास्ते में उन्होंने हादी के कान में कुछ कहा था, जिस पर हादी ने हातिम की जानिब देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। हाफा और हमना कमरे में मौजूद थी। कुछ देर पहले उन्हें इतला दी गई थी कि हातिम हमना से मिलना चाहता है। हमना का चेहरा बेतासिर था, जबकि हाफा वहाँ से बाहर जाना चाहती थी, मगर हमना ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। हमना मुझे जाने दो। वो उस इंसान को देखकर अपना ज़ब्त नहीं खोना चाहती थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और हाफा ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। चंद लम्हों बाद नईम साहब के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। हमना सर झुकाए बैठी थी, जबकि हाफा बाहर जाने के लिए पड़तोल रही थी। उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। हातिम हमना से अकेले में मिलना चाहता है। नईम साहब ने यह जुमला हाफा को देखते हुए बोला तो हातिम ने एक लम्हे के लिए उसकी जानिब देखा। उस लड़की की सियाह आंखों में उलझन सी थी। फिर हातिम ने अपनी निगाहें उस पर से हटा ली। वो अपना हाथ छुड़वाकर खड़ी हो चुकी थी। उसने एक नज़र हमना की जानिब देखा, जिसने जवाबन हाफा की जानिब देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया, मगर हाफा बिना किसी की जानिब देखती बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद हमना ने फिर से अपना सर झुका लिया। हातिम एक जानिब खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था। नईम साहब हमना के झुके सर पर हाथ रखते बाहर की जानिब बढ़ गए। उनके जाने के बाद हमना ने एक निगाह बंद दरवाजे पर डाली और फिर एक नज़र हातिम को देखा। उसके सामने खामोश खड़ा मर्द अब उसका शौहर था, मगर अनचाहा। उसे नहीं मालूम था कि वो उससे क्या बात करना चाहता है, मगर वो उसे एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहती थी। वो आहिस्तगी से उठी और हातिम के सामने जा खड़ी हो गई, जो शायद उससे बात करने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। मुझे तलाक चाहिए। बिना कोई तमहीद बांधे वो सीधा मुद्दे की बात पर पहुंची थी। हातिम ने एक झटके से अपना सर उठाया और अपनी नई नवेली दुल्हन को देखा, जिसके निकाह को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे और वो उससे तलाक का मुतालबा कर रही थी। उसे लगा कि उसे सुनने में कोई गलती हुई है। क्या कहा आपने? हमना का चेहरा सपाट था। मुझे नहीं लगता कि आपके कान ख़राब हैं, फिर भी अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो मैं दोबारा कहती हूँ। उसने बाजू अपने सीने के गिर्द लपेटते हुए कहा। जैसे जैसे वो कहती जा रही थी, हातिम के पेशानी पर जाल नमूदार हो रहे थे। मुझे तलाक चाहिए। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। हातिम ने लंबा सांस भरा और आसमान की जानिब देखा। देखे खानम, आप आराम से बैठे, हम कोई हल निकालते हैं। हातिम ने उसका हाथ थामना चाहा, मगर हमना पीछे हटती चली गई। उसे सिर्फ़ और सिर्फ तलाक चाहिए थी। मुझे कोई हल नहीं निकालना। मुझे ना ही आपके साथ रहना है और ना ही मुझे अपने नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तलाक चाहिए। हातिम ने एक निगाह उस बिखरी हुई लड़की पर डाली। वो अब उसे गुस्सा दिला रही थी। खानम, अगर आप राज़ी नहीं थी तो निकाह क्यों किया? वो अब बिस्तर पर बैठ चुका था, जबकि हमना दरवाजे के पास खड़ी उसे घूर रही थी। मुझे बार बार खानम मत कहें। मुझे आपसे तलाक चाहिए। हातिम जितना आराम से मामले को निपटाना चाह रहा था, वो उतना ही बिगाड़ रही थी। हातिम उठा और भारी भारी कदम उठाता हमना के सामने जा खड़ा हुआ। सपाट चेहरे के साथ कमीज़ के कफ मोड़े और फिर उसे सर्द नज़रों से देखा। एक लम्हे के लिए हमना को उसे खौफ महसूस हुआ। हातिम अब उसके नज़दीक आ रहा था। हमना ने पीछे की जानिब कदम लेने चाहे, मगर पीछे दीवार थी। वो अब बिल्कुल हमना के सामने खड़ा था। उसकी गर्म गर्म सांसें हमना को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थी। हमना ने डर कर अपनी आंखें मींच ली। जी खानम, आप क्या कह रही थी? वो हमना के कान के पास बोला था। यह लड़की आराम से बात सुनने वालों में से नहीं थी। हमना ने अपने दिल में अपना मकसद दोहराया और उसकी आंखों में देखा। अलबत्ता दिल बुरी तरह डर रहा था। मुझे आपसे तलाक चाहिए। उसकी वही गर्दान सुनकर हातिम ने लंबा सांस भरा और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पीछे हटा। मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा। अपनी रजामंदी से निकाह किया था।
हमना चंद लम्हे उसके सपाट चेहरे को देखती रही और फिर अपना सर नफ़ी में हिला दिया। हातिम को समझ आ रही थी कि वो क्या चाहती थी। जब लड़की राज़ी नहीं थी तो निकाह क्यों करवाया गया? किसी और से मोहब्बत करती हो? उस सवाल पर हमना हातिम के चेहरे को देखती रह गई, जो अपनी मनकुहा से पूछ रहा था कि क्या वो किसी और से मोहब्बत करती है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अब की बार वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला। वो उस मामले को जल्द अज जल्द सुलझाना चाहता था। उसका सर फिर से इस बात में हिलता देखकर वो पीछे हटा और कुर्सी पर बैठ गया। वो अब गौर से हमना को देख रहा था। देखो लड़की, वो एक लम्हे को ठहरा, खानम कहलवाने का हक तुम खो चुकी हो। खैर छोड़ो, अगर मैं तुम्हें तलाक दे भी दूँ तो तुम क्या करोगी? वो वहाँ बैठा आने वाले वक्त का तज्जिया करा था। मैं हदील से शादी कर लूँगी। हमना की बात पर हातिम के लब ओह की शक्ल में ढले। मतलब वो हदील था। वो अपनी कमीज़ का दामन छुड़ाता खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो चलता हुआ हमना के करीब आया। निकाह मुबारक लड़की। उसे अब उस लड़की से कोई बात क्लियर नहीं करनी थी। वो उसके दाएं जानिब मौजूद दरवाजे की जानिब बढ़ा। और तलाक? हमना की बात पर वो एक लम्हे को ठहरा और गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। अब की बार उसके चेहरे पर एक पुरअसरारियत थी। मिल जाएगी, ये कहते हुए वो बाहर निकल गया, जबकि पीछे हमना ने शुक्र का सांस भरा था। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था। वो अभी सोने के घर से बिस्तर पर लेटी ही थी कि साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल फ़ोन अपनी पूरी आवाज़ के साथ चिंघाड़ा था। उसने खौफ से वॉल क्लॉक की जानिब नज़रें दौड़ाईं, जिसकी छोटी सुई 12 की जानिब सरक रही थी। इस वक्त किसका दिमाग घूमा था? उसने थकान से नज़रें चुराते हुए हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। स्क्रीन से फूटती नीली रोशनी में उसकी सांवली रंगत वाज़ेह हुई थी। स्क्रीन पर जगमग करते अनजान नंबर को देखकर उसकी पेशानी पर सिलवटों का जाल बिछ गया। कोई उस वक्त उसे कॉल क्यों कर रहा था? उसकी आंखें थकान के बाइस बंद होने को थी। उसने यूं ही लेटे हुए मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया और दूसरी जानिब से बोलने वाले का इंतज़ार किया। अस्सलाम वालेकुम। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, मगर जिसकी भी थी उसके लिए अनजान थी। वो चलना में खामोशी से उसे पहचानने की कोशिश करती रही, मगर पहचान न पाई। शायद मुकाबिल ने फुर्सत से वो नंबर मिलाया था। वालेकुम अस्सलाम। कौन? पहचान ना पाने पर उसने सवाल किया, मगर साथ ही सलामती का जवाब देना भी ज़रूरी समझा। अब वो इतनी बेमरवत भी नहीं थी। इस सवाल पर मुकाबिल ने कहा लगाया, तुम मुझे नहीं जानती। मुकाबिल की मध्यम सरगोशी पर हाफा के अब्रू तन गए। आखिर वो कौन था जो उसे तुम कह रहा था? उसे ऐसे लोग सख्त नापसंद थे जो पहली दूसरी मुलाकात में ही बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करते हैं। जी मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैं फ़ोन रख रही हूँ। उसका लहजा उस वक्त सख्त था। वो उस वक्त किसी की फिजूल बातें सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उससे पहले वो कॉल काटती स्पीकर से उभरती आवाज़ उसे ठटकने पर मजबूर किया। मैं हबूर का कज़न हमज़ा शाह। हाफा को फ़ौरन से हबूर का वो सरदार टाइप कज़न याद आया था। साथ ही साथ उसकी उलझन में मुब्तला करती नज़रें भी याद आई थी। मगर हबूर का कज़न रात के इस वक्त उसे क्यों फ़ोन कर रहा था? एक मिनट, हबूर तो ठीक थी ना? वो जल्दी से सीधी हो बैठी। हबूर तो ठीक है ना? उसके तफक्कुर भरे लहजे पर दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। शायद मुकाबिल कुछ सोच रहा था। हबूर बिल्कुल ठीक है। हाफा ने बेख्तियारी शुक्र का सांस भरा। मिस्टर हमज़ा शाह, आपने मुझे कॉल क्यों की है, वो भी रात के इस पहर? उसका लहजा इस बार सपाट हुआ था। वो उसे कैसी लड़की समझ रहा था जो रात के इस पहर मुंह उठाकर कॉल मिला दी? इस पहर क्या हाफा किसी भी पहर उससे बात नहीं करना चाहती थी? मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता था। वो शायद तमीज़ बांध रहा था, या फिर कम अज़ कम हाफा को तो यही लगा। बाज़ औक़ात तमीज़ मुकाबिल को अगली बात करने के लिए तैयार करती है, और हमज़ा की बात वाकई में तमीज़ तलब थी। आपको जो भी ज़रूरी बात करनी है वो जल्दी करें। मेरा नहीं ख्याल कि रात के इस पहर किसी लड़की को फ़ोन करके उससे ये कहना कि आपसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं एक मुहज़्ज़िब अमल है। मुकाबिल को उससे इस कदर साफ गोई की तवक्को नहीं थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाफा को भी उसे इस कदर बेबाकी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। उसने झटके से मोबाइल फ़ोन कान से हटाया और यकीन करने की कोशिश की। क्या उसने दुरुस्त सुना था? हाँ, उसकी कुव्वत समाअत बिल्कुल दुरुस्त थी। मुकाबिल ने अभी यही जुमला कहा था कि वो उसे शादी करना चाहता है। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई?
مسٹر حمزہ شاہ، ایک منگنی شدہ لڑکی سے یہ بات کرنا تہذیب کے زمرے میں بالکل نہیں آتا۔ مجھے امید ہے آپ آئندہ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اس نے اپنا غصہ چھپانا ضروری نہ سمجھا اور نہ ہی اپنی ناگواری کو چھپانا ضروری سمجھا۔ پھر مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے حمزہ کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی اور جھٹکے سے موبائل فون سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ وہ انسان اس کا اچھا خاصا دماغ خراب کر چکا تھا۔ مگر ایک منٹ، وہ ٹھٹکی، اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ فوراً سے دماغ میں حبور کا خیال آیا۔ یقیناً حبور سے ہی اس حمزہ نامی بلا نے اس کا نمبر لیا ہوگا۔ خیر، حبور سے تو وہ صبح کو تفصیل گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اب حمزہ اور اس کی کہی بات کو اپنے دماغ سے جھٹکتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نیند اس پر آج جلد ہی مہربان ہو گئی تھی۔ کوئی لڑکی آخر اسے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ تو حمزہ شاہ تھا نا۔ کوئی اسے بھی انکار کر سکتا تھا بھلا؟ وہ سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے اپنے آپ کو زہر سے بھر لینا چاہتا ہو، مگر اصل میں تو وہ اپنے غصے کو اپنے آپ پر ہی اتار رہا تھا۔ اس کی سردارنی اس کو انکار کر چکی تھی۔ یہ بات کافی مضحکہ خیز تھی۔ ریلنگ پر جھکے ہوئے وہ دھوئیں کے مرغولے فضا میں شامل کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری چیزیں تہز نہز کر کے رکھ دے، مگر نہیں۔ وہ کم از کم اس معاملے کو اپنے غصے کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حمزہ شاہ تھا، بہترین حکمت عملی چلنے والا۔ وہ عدالت کے داؤ پیچ سے واقف تھا تو زندگی کے میدان کے کھیل بھی اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے لمبا سانس بھر کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے غصے کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دے سکتا تھا۔ اس معاملے کو اپنی ذہانت سے حل کرنا چاہتا تھا۔ بابا حضور کے مطابق حمزہ شاہ کو ذہانت میں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے نام اور کام کا شاہگڑھ میں صرف ایک ہی تھا۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سیدھا ہوا اور دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے گردن موڑ کر اندر آنے والے کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ قدموں کی آہٹ سے ہی نوارڈ کو پہچان چکا تھا۔ اندر آنے والا اس کا خاص آدمی تیمور تھا۔ اب اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حمزہ ہنوز کھڑا رہا، البتہ اس کی نظریں آسمان پر چمکتے چاند پر تھی۔ فضا کی خنکی حمزہ کے روح کو فرحت بخش رہی تھی۔ بولو تیمور، آخر کون سی بات تمہیں اس وقت یہاں کھینچ لائی؟ تیمور حویلی کے ایک جانب بنے کوارٹرز میں سے ایک میں رہتا تھا۔ وہ صرف کسی خاص مقصد کے تحت ہی حمزہ کے کمرے کا رخ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی ملازم کو رات کے وقت حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اپنے مالک کے سوال پر سر جھکائے کھڑے تیمور نے سر اٹھایا۔ اس کی عمر تقریباً 35 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ حمزہ اب تیمور کو دیکھتے ہوئے کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ پرسوچ نظروں سے تیمور کو دیکھے گیا۔ تیمور اپنے مالک کے غصے سے خائف ہوتا تھا۔ وہ اس وقت حمزہ کے چہرے پر غصے کا شائبہ نہ تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی بات سننے کے بعد حمزہ کا نارمل موڈ کا کباڑہ ہونے والا تھا۔ تیمور، کیا تم میری شکل دیکھنے آئے ہو؟ مانا کہ میں خوبصورت ہوں، مگر اس وقت میں تمہارا نظارہ بننا بالکل بھی پسند نہیں کروں گا۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر تیمور نے اسے دیکھا۔ جوان خوبرو مرد، خوبصورت تو تھا۔ حضور، مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے حمزہ کی جانب دیکھتے ہوئے تمہید باندھی، جس نے اس کی بات پر لمبا سانس بھرا تھا۔ مجھے پتہ ہے تیمور، تم کوئی ضروری بات کرنے ہی آئے ہو، ورنہ نیند میں چلنے کی بیماری تو تمہیں ہے نہیں۔ تیمور کو وہ آج پہلے والا حمزہ لگا تھا جو اسے مذاق کر لیا کرتا تھا، ورنہ جب سے اس نے وکالت کی دنیا میں قدم رکھا تھا ہر وقت اس کا چہرہ سڑا ہوا ہی رہتا تھا۔ مگر اب اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بات پر حمزہ کا کیا رد عمل ہونے والا تھا۔ میرا وقت ضائع مت کرو تیمور۔ اس کے لہجے کی تنبیہ نے تیمور کو بولنے پر مجبور کیا۔ قاسم نے ایوانوں کے خلاف کیس واپس لے لیا ہے۔ حمزہ کے چہرے کے تاثرات نافہم تھے۔ وہ چند لمحے تیمور کے چہرے کو تکتا رہا اور پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ جاؤ تیمور، سو جاؤ، یہ بات تم سے پہلے مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تیمور کو حیرت ہوئی کہ آخر وہ اتنا نارمل کیوں تھا۔ اس نے قاسم کو ابھی تک واصل جہنم کیوں نہیں کیا تھا؟ اور قاسم؟ اس کے سوال پر حمزہ کے چہرے کی مسکراہٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا، البتہ آنکھوں کا سرد پن بڑھ چکا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ اس نے دشمن سے ہاتھ ملا کر اچھا نہیں کیا۔ اس کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اب تم جاؤ۔ حمزہ کی سرد آواز پر تیمور شکر کا سانس بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حمزہ آنکھیں موندے پورے دن کے واقعات دہرا رہا تھا،
مگر کچھ دیر ہونے والا واقعہ سب پر بھاری تھا۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر کچھ دیر پہلے ملائے گئے نمبر کو دیکھا جو اب تک اسے زبانی یاد ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد اپنی سردارنی کے منحوس منگیتر کو بھی ٹھکانے لگانا تھا۔ وہ لمبا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھی وہ دونوں ایک دوسرے کو کل کی روادات سنا رہی تھی اور حبور کا ہر جملہ کھڑو سے شروع ہو کر ڈیکولا پر ختم ہو رہا تھا۔ حافظ کو اس کی گفتگو سن کر کچھ کھٹک رہا تھا، کچھ تو تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا، مگر اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے اپنی سوچ کو جھٹک ڈالا۔ وہ بھی کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے جوس پیتی حبور کو غور سے دیکھا اور اپنا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا جس سے نکلتے اسٹرا کو اب وہ اپنی انگلیوں سے گھما رہی تھی۔ حبور، اس نے یوں ہی حبور کو پکارا۔ جواباً جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے حبور نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے تمہارے کزن نے پرپوز کیا ہے۔ اور یہ جوس حبور کے منہ سے فوارے کی صورت باہر نکلا۔ اب وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ حافظ اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑی۔ اپنا چہرہ صاف کرتے حبور نے چنگیز خان کو 100 صلواتیں سنائی تھیں۔ کیسے پرپوز کیا؟ اب وہ میز پر جھکی رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر چنگیز خان نے کس طرح حافظ سے بات کی ہوگی۔ حافظ پرسکون انداز میں جوس کے گھونٹ حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ اس کے پاس میرا نمبر کیسے پہنچا؟ اس سوال پر حبور سیدھی ہو بیٹھی۔ حافظ کا انداز نہایت سنجیدہ تھا۔ اس کی سنجیدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے حبور نے اپنا تھوک نگلا۔ یہ کن لوگوں کے درمیان وہ پھنس گئی تھی؟ حافظ کو اپنی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتا پا کر حبور اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ کیسے حمزہ نے اس سے حافظ کا نمبر لیا تھا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حبور کے لہجے اور آنکھوں میں حمزہ کے لیے نفرت، غصہ، الجھن اور نہ جانے کیا کچھ واضح ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے مختلف تاثرات کو حافظ نے نہایت غور سے دیکھا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد حافظ نے لمبا سانس بھرا۔ جو کچھ حبور نے اسے اپنے کزن کے بارے میں بتایا تھا اس کے مطابق وہ اسے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انسان اتنی جلدی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا اور حافظ ایسے کسی انسان کی نظروں میں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اب تو وہ نظروں میں آ بھی گئی تھی اور نظروں کو بھا بھی گئی تھی۔ اب نہ جانے فضائیں کون سا گیت گانے والی تھی، گیت گانے بھی والی تھی یا پھر ماتم کرنے والی تھی۔ تم نے اسے کیا کہا؟ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد حبور کے دماغ میں یہ سوال آیا تھا، یہی کہ ایک منگنی شدہ لڑکی سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہنے کے بعد اس نے حبور کی جانب دیکھا جو منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں حیرت سے کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ سچ شکر اس وقت وہ جوس نہیں پی رہی تھی۔ 1 منٹ، تم منگنی شدہ ہو؟ تقریباً 2 منٹ بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حافظ کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس کے شوقڈ لہجے پر حافظ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنا جوس مکمل پی چکی تھی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے کیفیٹیریا میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ او گاڈ، تمہاری منگنی ہو گئی ہے حافظ، تمہارا ایک عدد منگیتر بھی ہے۔ وہ اب کچھ شوقڈ سی، کچھ پرجوش سی بول رہی تھی۔ اس کی دوست منگنی شدہ تھی، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری منگنی کب ہوئی، کس سے ہوئی، تمہارا منگیتر کیا کرتا ہے، تم دونوں کی بات ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے پاس سوالوں کا ایک پلندہ موجود تھا۔ حافظ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکچر کا وقت ہونے والا تھا۔ دوستوں کو آخر اس بات میں سب سے زیادہ دلچسپی کیوں ہوتی ہے کہ منگیتر سے بات ہوتی ہے یا نہیں؟ منگنی ہو جانے سے منگیتر محرم تو نہیں بن جایا کرتا، منگیتر ہوتا تو نامحرم ہی ہے۔ اگر منگیتر سارے راز و نیاز جاننے کے بعد چھوڑ دے تو تب لڑکی کے پاس کیا توجہ ہوگی؟ قصور تو سارا لڑکی کا ہی گردانا جاتا ہے نا کہ وہ لڑکی تھی، اسے اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ حافظ کی سوچ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی رہتی اگر حبور اس کے چہرے کے آگے اپنا ہاتھ نہ لہراتی۔ بتاؤ نا، وہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے یا ماموں کا؟ اس سوال پر حافظ کے چہرے کے آگے ایک سایہ لہرایا تھا۔ وہ بدقت پھیکا سا مسکرائی۔ خالہ کا بیٹا ہے۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کلاس روم کی جانب بڑھے۔ درخت پر بیٹھے فاختہ کے جوڑے نے انہیں دور تک جاتے دیکھا تھا۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو اندر کے ماحول کو کافی گرم پایا، مگر وہ محض ہیٹر کی گرمائش نہیں تھی، اس گرمائش میں وہاں موجود نفوس کی نظروں سے نکلتی تپش بھی شامل تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بابا حضور کی جانب بڑھی، جنہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پر بدقت مسکراہٹ سجائی تھی، جبکہ صوفے پر بیٹھے حمزہ کے تاثرات ویسے ہی سرد تھے۔ السلام علیکم بابا حضور۔ وہ ان کے ساتھ لگی، ان کے تاثرات جانچ رہی تھی جو اب بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ صوفے پر بیٹھا حمزہ شاہ اپنی ٹانگ جھلا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے؟ ان کے مسکرا کر پوچھنے پر وہ اپنا حال احوال انہیں بتانے لگی۔ اسی وقت حمزہ کھڑا ہوا اور ایک لمحے کے لیے ان باپ بیٹی کو دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
दरवाज़ा बंद होने पर हबूर ने हैरत से बाबा हुजूर की जानिब देखा। हमजा कभी भी बाबा हुजूर से इजाज़त लिए बिना कमरे से बाहर नहीं जाया करता था। आज कुछ तो हुआ था। वो अभी उस रात वाली बात नहीं भूली थी। तब से उसने हमजा को मुखातिब नहीं किया था, मगर आज यकीनन उसके और बाबा हुजूर के दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई थी, वरना हमजा बाबा हुजूर से इजाज़त लेकर ही बाहर जाता। उसे क्या हुआ है? उसने दरवाजे की जानिब इशारा किया तो चंद लम्हों के लिए बाबा हुजूर का चेहरा संजीदा हो गया। हबूर खामोशी से उनके बदलते तासरात देख रही थी। आखिर कुछ तो हुआ था। तुम उसे छोड़ो, वो तो ऐसी शक्ल लेकर पैदा हुआ है। तुम बताओ यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? उनके बात पर हबूर का कहकहा उड़ा। क्या तो वो ठीक रहते, उसकी शक्ल ही ऐसी थी। यूनिवर्सिटी अच्छी जा रही है। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। चेहरे पर अभी भी नकाहत छाई हुई थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट, उन्होंने अपने बाजू फैला कर कहा तो हबूर ने तासिफ से अपना सर नफ़ी में हिलाया। बाहर धूप में बैठा करें, आज भी धूप निकली थी। ये आयशा आपका ख्याल नहीं रखती ना? मेरी बात मानिए, उसे जल्द अज जल्द रुखसत कर दें। वैसे ही थी, बात शुरू कोई करती थी और अख्तिताम तक बात तब्दील हो जाया करती थी। आयशा का निकाह बाबा हुजूर के कज़न के बेटे के साथ हुआ था और अब उसकी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी थी। हबूर की बात को बाबा हुजूर ने संजीदा ले लिया था। उनकी तबीयत भी अब ख़राब रहने लगी थी। वो अब अपने फ़राइज़ अंजाम देकर सुकून से अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही अहमद से बात करूँगा। उनकी बात पर हबूर खुशी से उछल पड़ी। क्या आप सच में आयशा की शादी करने वाले हैं? उसके पुरजोश अंदाज पर बाबा हुजूर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो वो याहू का नारा लगाती खड़ी हो गई। मैं अभी आयशा को यह खुशखबरी सुना कर आती हूँ। वो जल्दी से बाहर निकल गई। उसकी बहन की शादी होगी, कितना मज़ा आएगा ना। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को तकती वो साकित बैठी। अगर उसे दूर से देखा जाए तो उस पर से किसी मुजस्समे का गुमान हो। वो सोचों के मझधार में डूबी हुई थी, जहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल था। स्क्रीन से फूटती नीली रोशनी में उसका चेहरा जगमगा रहा था। वो कब से स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर पर नज़रें जमाए बैठी थी। वो उससे बात करना चाहती थी, मगर वो किस हक़ से उससे बात करेगी? वो भी इतना बेमरवत निकला था कि उससे ये तक नहीं पूछा था कि आखिर वो ज़िंदा भी थी या उसके अरमानों के जनाज़ों के साथ उसका जनाजा भी उठ गया था। दिल में शदीद दर्द उठा था और आंसुओं की सूरत बाहर भी निकलने लगा। स्क्रीन पर गिरते आंसू अपनी नाकदरी का रोना रो रहे थे। उसने गहरा सांस लिया और कॉल मिला दी। उसे नहीं मालूम था कि वो कॉल उठाई भी जाएगी या नहीं। वो यकीनन उससे नाराज़ था, वरना हादिल अकरम दिन में एक बार तो उससे बात किया करता था। वो इतना लापरवाह तो कभी ना था कि हमना को फरामोश कर देता। दूसरी जानिब अपने ऑफिस में बैठा हदील चंद लम्हों के लिए उस कॉल को नज़रअंदाज किए बैठा रहा। वो उससे बात नहीं करना चाहता था। उसे हमना पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो उस हातिम के साथ निकाह कर चुकी थी। वो हदील से बेवफाई कर चुकी थी। अब वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। उस दुश्मन जहाँ की कॉल आ रही थी और वो इनमहाक से अपना काम करता रहे, ऐसा कहाँ मुमकिन था। उसने अपने दिल को मलामत करते हुए कॉल अटेंड कर ली। दोनों के दरमियान खामोशी छाई थी। ना ही हमना ने अपने लब खोले और ना ही हदील बोला था। इस खामोशी के ज़रिए से कहीं अनकहे जुमलात एक दूसरे के समातों में गूंज रहे थे। हदील के खामोश लब हमना से कई शिकवा कर रहे थे। आखिर क्यों उसने अपनी मोहब्बत पे बेवफाई की मोहर लगा दी थी? हमना ने अपनी सिसकी को दबाने की खातिर अपने मुंह पर हाथ रखा, मगर उसकी आवाज़ हदील के कानों तक पहुंच चुकी थी। हदील ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां बींच ली। फॉर गॉड सेक हमना, चुप करो। खामोशी के कफल को तोड़ दिया गया। वो झुंझलाया था। उसकी आवाज़ पर वो चुप होने की बजाय और रोने लगी। हमना, क्या मसला है? अब की बार हदील ने उसे डपटा था। एक तो सारा कसूर उसका था और ऊपर से वही रो रही थी। वो उसका सारा सुकून निकाह वाले दिन से ही गारत कर चुकी थी। हो गया ना तुम्हारा निकाह, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, मगर तुम हो के रोए जा रही हो। वो अपनी तलखी उस पर उड़ेल रहा था और वो खामोशी से उसे सुन रही थी। आंसू खुद ब खुद चेहरे पर बहते जा रहे थे। क्यों कॉल की है? वो ज़रा सा मध्यम पड़ा था। हमना ने बेड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। वो अब उसे कॉल करने की वजह पूछ रहा था। क्या वाकई अब उसे कॉल करने के लिए भी हमना को कोई वजह दरकार थी? आई एम सॉरी हदील, वो काफ़ी देर बाद बोली थी। हदील अब बेचैनी से रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। सॉरी हमना, तुम मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो? तुम किसी और के निकाह में हो हमना। ये बात सोच सोच कर उसका खून खौल रहा था। उसकी बात को सुनते ही हमना के आंसू और रवानी से बहने लगे।
सॉरी फॉर एवरीथिंग, वो बमुश्किल बोल रही थी। गले में अटकते आंसू बात करने के रुकावट काम कर रहे थे। मैंने हातिम से तलाक की बात कर ली है। उसके मध्यम लहजे पर हदील ने अपना सर झटक दिया। उसके मुंह से किसी और का नाम कोड़े की माने लग रहा था। कुछ वो शख्स के निकाह में थी। आह हाँ, जैसे वो तुम्हारे मुतालबे को मान जाएगा। हमना, तुम किस दुनिया में रह रही हो? वो तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा। उसने ना जाने कितने ज़ब्त से ये जुमला बोला था। उसकी बात पर हमना ने अपने आंसू साफ किए और सीधी हो बैठी। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे तलाक दे देगा। हदील, मेरा यकीन करो, वो पूरी यकीन लहजे में बोली थी। उसे पूरा यकीन था कि हातिम उसे तलाक दे देगा। तो जिस दिन वो तुम्हें तलाक दे दे उस दिन मुझे कॉल कर लेना। अब तलाक से पहले मुझे कॉल मत करना। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि तुम उसके निकाह में हो। अपना ख्याल रखना। वो एक ही सांस में बोलता कॉल काट गया था। हमना शौक नज़रों से स्क्रीन को देखती रही। हदील ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था। हदील को लगता था कि हातिम उसे तलाक नहीं देगा। उसे जल्द अज जल्द हातिम से तलाक लेनी थी, मगर कैसे? वो अब हातिम से कैसे बात करेगी? उफ़। आयशा को खुशखबरी सुनाने के बाद वो पूरी हवेली में हमज़ा को तलाश कर रही थी। उसके अंदर का कीड़ा उसे खामोश बैठने नहीं दे रहा था। वो हमज़ा का दिल जलाना चाहती थी। वो उसके कमरे की जानिब बढ़ी, मगर खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था। वो किसी ख्याल के तहत बाहर लॉन की जानिब बढ़ गई। वो यकीनन वहीं होगा। लॉन में कदम रखते ही उसे वहाँ मौजूद कुर्सी पर बैठा नजर आया। वो अपने दुपट्टे को एक हाथ से संभालती उसकी जानिब बढ़ी। हमज़ा भी उसे दूर से ही अपनी जानिब आता देख चुका था। उसे हबूर से कोई सरोकार नहीं था। वो उसके लिए महज एक सीढ़ी थी जिसके ज़रिए से वो हाफा तक पहुंच सकता था। वो आजकल हाफा के मंगेतर के बारे में मालूमात निकलवा रहा था। वो जल्द अज जल्द उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। अब हबूर उसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अब वो खामोशी से गर्दन उठाए हमज़ा की जानिब देखने लगी, जिसके चेहरे पर किसी जज्बे की रमक मौजूद नहीं थी। मैं अभी भी वो रात भूली नहीं हूँ। तुम्हारी उंगलियों का लम्स मुझे अभी भी अपनी गर्दन पर महसूस होता है। वो सपाट लहजे में वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। हमज़ा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद भी अपनी गिरफ्त का अंदाज़ा था। अगर वो ज़रा और देर करता तो हबूर उस दुनिया से कूच कर जाती, और उसे इस बात से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इतना शफाक क्यों था? शायद मैं कभी तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाऊं, क्योंकि बदकिस्मती से मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने से जुड़े रिश्तों की परवाह है। उसकी बात पर सिर्फ एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक साथ के लिए हमज़ा की आंखों का तासिर तब्दील हुआ था। वो जालिम मुजस्समा सिर्फ एक लम्हे के लिए पिघला था, मगर वो लम्हा आया, बीत गया, और मुजस्समा वैसा का वैसा मजबूत खड़ा रहा। खैर, मैं अभी तुम्हारे साथ नॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी हरकत भूली नहीं हूँ। अगर हमज़ा को लग रहा था कि हबूर पहले जैसे हो गई थी तो वो बिल्कुल गलत था। कम अज़ कम इस दफ़ा उसकी कयास आराई दुरुस्त नहीं थी। वो ठंडे लहजे में बात करके सामने वाले को अंदर तक जला देने की सलाहियत रखती थी। मैं अगर अभी बाबा हुजूर को बता दूं कि तुमने उनकी लाडली को जान से मारने की कोशिश की है, और साथ में 2-4 बातें और शामिल कर दूं, तो क्या होगा हमज़ा शाह? उसने अपने नाखूनों पर लगे सुनहरी रंग को देखकर मुस्कुराते हुए इस दफ़ा हमज़ा के चेहरे का पूरा रंग बदला, और वो अंदाज़ा भी नहीं कर पाया था कि उसके चेहरे पर से कौन कौन से रंग आकर गुजर गया। मगर तुम फ़िक्र मत करो, अब हबूर शाह इस कदर जालिम भी नहीं। वो सही मायनों में हमज़ा का दिल जला रही थी। मगर एक बात याद रखो, अगर हबूर शाह का दिमाग घूम गया तो उसे जालिम बनने में देर नहीं लगेगी। उसने अपनी मुस्कुराहट समेटी थी। हमज़ा का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर उसके दिल को तस्कीन मिल चुकी थी। अब उसने पुरसुकून अंदाज में कुर्सी से टेक लगा ली। अब तक हमज़ा अपने आप को संभाल चुकी थी। उसने हबूर को नज़रअंदाज करते हुए सामने पड़ा मोबाइल फ़ोन उठाया। अब वो अपनी उंगलियों से स्क्रॉलिंग कर रहा था। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। उसने हमज़ा के झुके सर को देखते हुए हमज़ा ने हल्का सा हुंकारा भरकर गोया उसे बात करने की इजाज़त दी। उसका सर हनूज़ झुका हुआ था। तुम हाफा को इस हवेली की बहू बनाना चाहते हो ना? उसके मध्यम लहजे पर हमज़ा की उंगली की हरकत थमी और उसने लंबा सांस भरते हुए मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दी। हबूर की ये बात अहमियत की हामिल थी। हाँ, यक लफ्ज़ी जवाब। एक तो उसके मुंह से अल्फाज निकलवाना इतना मुश्किल काम क्यों था? हबूर ने बेजारी से सोचा। क्यों? हमज़ा को हबूर से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। जिस वक्त ये फ़ैसला किया गया था उस लम्हे हबूर उसके साथ ही थी। फिर ये सवाल पूछने का क्या जवाब बनता था? हबूर मुस्कुराती नज़रों से हमज़ा की कश्मकश में मुब्तला चेहरे को देख रही थी। अब जवाब दो हमज़ा शाह। वो जैसे आंखों ही आंखों में उसे चैलेंज कर रही थी। बताओ, तुम इससे शादी क्यों करना चाहते हो? उसके सवाल पर हमज़ा को वो फ़ोन कॉल याद आई। तो क्या हाफा ने हबूर को उसके प्रपोज़ के मुतालिक बता दिया था?
مجھے اس کی آنکھیں اچھی لگی تھی۔ حمزہ شاہ کی جھجک حبور کے لیے نئی بات تھی۔ اس نے اپنے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھیں ہی اچھی لگی تھی، کسی اور کی بھی لگ سکتی ہیں۔ مجھے تو آج تک اس کی آنکھیں ناپسند نہیں آئیں۔ سب کی آنکھیں خوبصورت ہی ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں میں کیا خاص بات ہے؟ اس کی باتوں نے حمزہ شاہ کو جھنجھلا کر رکھ دیا۔ وہ آنکھیں معمولی نہیں تھیں، وہ حافہ کی آنکھیں ہیں، ان میں کچھ الگ ہے۔ اس کے لہجے میں کسی جذبے کی ہلکی سی آنچ تھی۔ حبور لب دبا کر مسکرا دی۔ کیا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس سوال پر وہ ٹھٹکا۔ اس نے حبور کی جانب دیکھا جو جواب طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ محبت؟ کیا اسے حافظ سے محبت ہو گئی تھی؟ اسے سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ حبور اسے اپنی باتوں سے بے چین کر چکی تھی۔ حمزہ، اس کی پکار پر وہ ٹھہرا۔ پہلے یہ سوچ لینا کہ محبت تمہارے نزدیک کیا ہے، اور پھر یہ سوچنا کہ تمہیں حافظ سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ اپنی ضد کے ہاتھوں کسی معصوم کی زندگی تباہ مت کر دینا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ حبور نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ کہاں سب کی آنکھیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اس کے اندر سے آواز آئی، اور پھر جھٹ سے نظروں کے سامنے کسی کی آسمان جیسی آنکھوں کا عکس آیا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر استغفار پڑھتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ جاری ہے۔ ہاں، تو آج کا ایپیسوڈ یہیں تک کے۔ حاتم جو حافہ کا ساتھی ہونا چاہیے، اس کی شادی ہو گئی ہے ہمنا سے، لیکن دیکھتے ہیں حاتم اب حافہ تک کیسے پہنچتا ہے، یا یوں کہیں کہ حافہ حاتم تک کیسے پہنچتی ہے، یا رائٹر ان دونوں کو کیسے ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ اور حبور کا کیا حبور کو ہائد ملے گا یا کوئی اور، یا کیا ہوگا، حمزہ کا کیا بنے گا؟ ناول تو ابھی شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل آگے کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، میرے لیے ڈھیر ساری دعا کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔